Students, hope you all are doing very well. So today we will start with our first poem in SSC textbook. This is where the mind is without fear. See, this poem is very important, not only from exam perspective but also by knowing, you should know for knowledge and for other things why India is known to the world, etc. So this poem was written by Rabindranath Tagore. This poem was written before independence. Okay. And Rabindranath Tagore was the first person, he was first non-European who won the Nobel Prize for this anthology. Okay, what do you mean by anthology? By anthology you mean collection. Okay, collection of what? Collection of poems. Okay, so by anthology you mean collection of poems. He had written an anthology which was known as Gitanjali, and where the mind is without fear was one of the poems from that anthology. He was awarded Nobel Prize in 1913, and in 1910 Gitanjali was written in Bengali. Then he himself translated it into English. When Barack Obama came in India around 2010, he also quoted his poem, this where the mind is without fear. So this is the great importance of this particular poem. Okay, so let's go ahead with our chapter with the poem. The poem says, where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thoughts and action, into that haven of freedom, my father, let my country away. See, first of all, you should know certain word meanings such as fragments. Okay, so what do you mean by fragments? Fragments means पीसेस, जहाँ पर जो पूरी दुनिया है वो अलग अलग पीसेस में डिवाइडेड नहीं है, ऐसा उनका बोलना है. दिस पोएम वाज एक्चुअली अ prayer. He was praying to God for betterment of India because it was written say around, it was published around 1910. और उस टाइम पे अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो उस टाइम पे हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. ओके, ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन. तो इसलिए वो गॉड से प्रे कर रहे थे कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए. You should know what is words like tireless striving. What do you mean by tireless? Tireless का मतलब होता है बिना थके बिना रुके. Striving का मतलब क्या होता है? आप चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. तो वो यही बोल रहे हैं कि जहाँ पर tireless striving है, हम अपने betterment की तरफ जा रहे हैं. Narrow domestic walls. What do you mean by narrow domestic wall? By narrow domestic wall you mean जो हमारी छोटी छोटी कास्ट रिलीजन के बेसिस हैं, जिसमें वेल्थ बेसिस हैं, जिसके हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए. ओके, तो अब हम इस पोएम का मतलब समझ लेते हैं. एक एक लाइन के लिए मेरे पास एक एक डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर. ऑनलाइन है तो वो मजबूरी नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको बेटर और कैसे समझ सकते हैं. तो देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. ओके, वेट, सो सॉरी फॉर टेक्निकल ग्लिचेस. Okay, so each slide has meaning of each line. I have almost 9-10 slides which will explain this poem very nicely. तो ये पहली लाइन है जहाँ पर आप प्राउड से रहते हो किसी कंट्री में जहाँ पर माइंड आपका बिना किसी डर के चलता है. सो सी, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आप बहुत ही प्राउड फील करते हो एज एन इंडियन. दिस इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन मीन्स. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. नॉलेज फ्री का ये मतलब नहीं है कि पैसे से फ्री. फ्री मतलब उसका जो एक्सेस है वो हर किसी को है. आप यहाँ देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड को है, ठीक है. आप यहाँ देख सकते हैं ये के शिवन है, ये इसरो के चीफ हैं और एक फार्मर के बेटे हैं. आप देख सकते हैं रूरल
एजुकेशन। तो नॉलेज जो है वो अब फ्री है, फ्री मतलब हर किसी को एक्सेस मिल रहा है, जो भी उसको डिजर्व करता है उसको नॉलेज मिलनी चाहिए। जहाँ पर वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स हमने पढ़ा था, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, मतलब पीसेस नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड के पीसेस हैं। यू कैन सी हियर, यू कैन सी यू नो इंडिया, देन यू कैन सी these are all European countries, and this is Brazil. Okay, these are European countries, these are North America, this is South America. So what you see is the whole world has been divided into Hinduism, Islam, Christianity and whatsoever. So this is something which Rabindranath Tagore did not want. उन्हें नहीं चाहिए था कि हम जो है वो पूरी दुनिया अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएं, इसीलिए वो भगवान से प्रे कर रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली जो है वो आपके सामने है। बाय नेरो डोमेस्टिक वॉल्स, नेरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब देखिए, एक तो आपका ये सब हो गया रिलीजन बेसिस, ओके। दूसरा हो गया कि हम कंट्री में अलग अलग चीज़ों से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सच एज पॉलिटिक्स हो गया, वेल्थ हो गया, इसके अलावा कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, तो इसे नेरो डोमेस्टिक वॉल्स कहते हैं। नेरो का मतलब क्या होता है, छोटी सोच, ओके। देन where words come out from the depth of truth, so who can be better epitome of truth, this is APJ अब्दुल कलाम, जहाँ पर हम बिना डरे, बिना किसी की परवाह किए बिना जो सच है, जो लॉजिकल है, वो चीज़ें बोलते हैं। ये उस तरह से लिखा गया है कि जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो वो बोल रहे हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग हमें पता है, बिना रुके हुए हम अपने बेटरमेंट की तरफ, अपने परफेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो दिस इज महात्मा गांधी होस्टिंग one of the events, these are great leaders you should know, okay, this is Subhash Chandra Bose, this is Pandit Jawaharlal Nehru, etc. Next one is where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. अच्छा, dead habit का मतलब क्या होता है? डेड हैबिट का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं जो हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सती प्रथा है, ओके, ये बाल विवाह है, these are some superstitions which we know, नींबू मिर्ची and whatsoever. So ये सारी चीज़ें dead habits है। What do you mean by dreary desert sand? Dreary desert sand means जहाँ पर कोई रस नहीं है। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको धूल मिले, तो वहाँ कोई रस नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कंट्री कुछ इस तरीके से हो, वो नहीं चाहते थे कि जहाँ पर लोगों के पास लॉजिक ना हो, जहाँ पर लोग सोचते ना हो और बस इसी तरीके से किसी भी रिचुअल को फॉलो करते जा रहे हों। Again, what he prays for where the mind is led forward by D. What do you mean by D? D और वो भी कैपिटल T के साथ। अगर आप थर्ड लास्ट लाइन देखेंगे तो जो लास्ट वर्ड है D, वो कैपिटल T के साथ है। जो भी कैपिटल के साथ है उसका मतलब क्या है कि वो सीधे गॉड को रिफर कर रहे हैं, वो गॉड से बातें कर रहे हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि जहाँ पर जो माइंड है वो आप हमें लीड कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से जाना है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग का क्या मतलब होता है? बाय एवर वाइडनिंग यू मीन जो चीज़ हमेशा बढ़ती रहे। एवर मतलब हमेशा और वाइडनिंग का मतलब होता है जो हमेशा बढ़ती रहे। तो वो थॉट्स, वो अच्छे थॉट्स, वो अच्छे एक्शंस, वो पॉजिटिव थॉट्स जो हमें ज़रूरी हैं, वो हमेशा भगवान की कृपा से, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से हमें हमेशा मिलती रहे और हमारी कंट्री हमेशा प्रोग्रेस करती रहे। एंड दिस इज लास्ट, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? ये एक ऑब्वियसली इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो एकदम स्वर्ग की तरह हो गई है, जहाँ पर लोग बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, ये दिस इज द पिक्चर विच कैन डिस्क्राइब इट्स बेटर। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। माई फादर, अगेन यहाँ पे एफ जो है वो कैपिटल है, तो ये लेट माई कंट्री अवेक। ओके, थैंक यू सो मच, होप दिस विल हेल्प यू।